गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 5 जरूर देखिए, बिकॉज लेक्चर नंबर 5 नहीं देखेंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड राइट द लेक्चर नंबर 6। सो टू अंडरस्टैंड एंड टू get command on the numericals, you must see the lecture number 5, right? Before start the lecture number 6. In lecture number 5, I am revising a little part of the lecture number 5. We have started or we have seen about the Ohm's law. It's a very important things for this chapter, right? In that one relation, that relation we have seen V is equals to IR, right? Or I is equals to V by R, or R is equals to V by I. In that we have seen the relation between V and I, that Ohm's law, right? In that we have seen the relation I and R, right? Also factors, right? On which factor this resistance is dependent, right class? And a very important again part we have seen, that is the resistivity, right? Resistivity. Today we will see the numericals on the basis of resistivity, right class? So resistivity, what we have written, R is equals to rho L by A, right class? That rho means resistivity, L means length of conductor, and A is cross section area, right class? On the basis of this formula, right, we will see the numericals, today's numericals. So be ready for that numericals, little calculative numericals, but on the basis of this formula purely, right? Okay class, so in that first question on the screen, on the board, a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 raised to power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 raised to power minus 2 ohm, right? Calculate the resistivity of copper, right? Resistivity of किसका? कॉपर का निकालने का है। ओके क्लास, सो उसी मैनर में हम सॉल्व करते हैं। पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, राइट? गिवन क्या क्या? लेंथ गिवन है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट पे भी ध्यान देना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया 1.7 into 10 raised to power minus 6 meter square, right? And resistance that is R is equals to given है, right? 2 into 10 raised to power minus 2 ohm, साइन के साथ में देता हूं, राइट? आपको निकालना क्या है? रेजिस्टिविटी, दैट इज रो, क्वेश्चन मार्क। ओके, कंफ्यूज ना होना, ये क्वेश्चन मार्क है। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। So resistivity, I know the one formula, R equals to rho L by A. So can I write rho is equals to R A by L? R A by L. R is given, right? We can put the formula values in that formula. 2 into 10 raised to power minus 2 into area 1.7 into 10 raised to power minus 6, right? And the length is given is 2 meter, that is 2. So this is the values of the given data which I have put on in the formula. Now 2 becomes cancel, right? What remain? 1.7 into 10 raised to power, this is minus 6 and this is minus 2. Powers terms we can add, minus minus, so minus minus becomes minus 8. This is right. Okay, one thing that might be remain, what should be the SI unit, right? SI unit वहां रह गया, आपको मेंशन करना है लेक्चर नंबर 5 में। So here is SI unit C. SI unit of resistance is ohm, SI unit of area meter square, SI unit of length meter, like right there I'm writing here SI unit. So here ohm, meter square and meter. 1 meter cancel, remain is what? Ohm, meter, right? Is the SI unit of resistivity.
right class? So ohm meter is the SI unit of resistivity. So I have to mention here SI unit ohm meter, right? Be remember, I think SI unit क्लास में रह गया था डिस्कस करना, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट? सो एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.7 into 10⁻⁻8 ohm meter, right class? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a 10 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire, right class? बिल्कुल आसान सा सवाल है, थोड़ा सा सोचिए, है ना? फोल्डिंग या डबल अप पे कॉन्सेंट्रेट किया गया और जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, राइट? चलिए सोचते हैं, गिवन डेटा के हिसाब से पहले लिख लेते हैं हम, R इज इक्वल टू लेते हैं 10 ओम, राइट? उसके बाद जो वायर है उस वायर का, है ना, इनिशियल लेंथ हम L मानते हैं या लेंथ ही मानो, कोई दिक्कत नहीं, और एरिया A मान लेते हैं जो वायर है। अब उस वायर को क्या किया, फोल्ड किया, है ना? फोल्ड किया यानी कैसे बताता हूं मैं। मान लो एक वायर कुछ इस तरह से, राइट? और इस वायर को, राइट, जिसका एरिया क्या है, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A और लेंथ है L और जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसको फोल्ड कर दिया इस तरह से, कुछ इस तरह से, राइट क्लास? अभी सोच के बोलो, ये ऐसे फोल्ड करने के बाद इसका न्यू लेंथ क्या होगा, नया लेंथ इसके कंपेयर में क्या, L/2 और एरिया 2A, राइट क्लास? सो वी हैव टू मेंशन after folding new length become L dash, जो इसके कंपेयर में क्या होगा, L/2, and new area become A dash, right, जो इसके कंपेयर में क्या होगा, 2A, right class? So what we have to calculate the new resistance of the wire, right class? So I know that wire वही है ना, वायर चेंज नहीं है ना, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। मुझे फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, राइट क्लास? राइट, यहाँ पे आपको R की वैल्यू पता है, राइट? लेकिन नया न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं, न्यू रेजिस्टेंस जहां पे कैलकुलेट करना है, न्यू रेजिस्टेंस R dash is equals to rho L dash by A dash, new length, new area, right class? So rho L dash और L में क्या रिलेशन है, L/2, right class? A dash में और A में रिलेशन क्या है, 2A, L dash की वैल्यू L/2, A dash की वैल्यू 2A. Now we will solve, so we'll get rho L by 4A. What is rho L by A? Rho L by A is what? That is R. इधर लिख रहा हूं मैं। So नया रिलेशन मिला हमको, देखिए R dash is equals to, क्या मैं लिख सकता हूं rho L by A की जगह कैन आई पुट R by 4? Can I put R by 4? So what is that? R is what? 10 ohm. So 10 by 4, that becomes 2.5 ohm is the new resistance of the wire, and this is the answer. Right class? Right? कॉपी कर लीजिएगा। Next question. What will be the resistance of wire of length 2 meter and the area of cross section is 1.55 10⁻⁻6 meter square if the resistivity of metal be 2.8 10⁻⁸ ohm, right class? देखिए कैसे,
आसान सा सवाल है बिल्कुल, आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट। गिवन डेटा है L 2 मीटर, एरिया दिया है 1.55 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, और रजिस्टिविटी गिवन है 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, राइट क्लास। एंड निकालना है आपको रेजिस्टेंस, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। R इक्वल्स टू क्या है, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। वी नो द रो, we know the L, and we know the area. Can we put the all values, right, like this? Rho is 2.8 into 10⁻⁸, right? L is 2 meter, and the area of cross section 1.55 10⁻⁶, right class? So we can put these values. After putting these values, right, we have to solve this relation, right, like this, 10⁻⁶ and -8, right, will becomes 2.8 into 2 and remain is -2. ये -6 ऊपर जाके प्लस बन जाएगा ना, ओके, तो -2 बचा, बाकी 1.55, राइट क्लास, राइट। कुछ इस तरह से आएगा। अगर इस रिलेशन को आप सॉल्व करते हो, आप ये सॉल्व करना ये आप पे डिपेंड है, राइट, किस तरह से आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, ओके क्लास। सो वी कैन सॉल्व बाय पॉइंट शिफ्टिंग मेथड, है ना। 2 डिजिट्स पॉइंट शिफ्ट कर ले तो यहाँ पे एक डिजिट हट जाएगा और यहाँ पे एक 0 अटैच हो जाएगा, यानी ऐसे 280 इंटू 2, राइट क्लास, बाय 155, राइट, इंटू 10⁻⁻² एज इट इज। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। कैसे, 5 से डिवीजन होता है, 5 से ये 3 बना और ये 1, राइट, 5 से ये बना 5 25 और 6 56, right class. Now we can solve it. 56 into 2, that is 112 by 31 into 10⁻⁻², right। 31 से सॉल्व करते हो तो लगभग आपका आंसर आएगा 3 लगभग 3.120 लगभग 3.7 ओम लगभग ये आंसर आना चाहिए, राइट क्लास। चेक कर लीजिएगा कहीं गलती ना हो, राइट, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of wire of resistance 20 ohm, right class, is drawn out so that the length is increased to twice of its original length. Calculate the resistance of wire in new condition. ठीक है क्लास। देखो ये क्वेश्चन वैसी ही है जैसे प्रीवियस फोल्डेड वाला था यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है, जैसे एक मान लो ये वायर है ना, इस वायर को इस तरह से स्ट्रेच किया गया या लिया गया कि ये क्या हो गया, इसका लेंथ ये ऐसे था, लेंथ डबल हो गया, राइट। लेंथ डबल हो गया इन द सेंस, थोड़ा फील करना पड़ेगा कि अगर गिवन आपको R इज इक्वल्स टू 20 ओम है, राइट, सो लेंथ आपका इनिशियल लेंथ क्या था, L, राइट, लेंथ लिखता हूं मैं यहां पे L, राइट, और एरिया क्या है, एरिया A। आफ्टर स्ट्रेचिंग और आफ्टर ड्रॉन, राइट, आफ्टर ड्रॉन what becomes new length, right, L dash I have to mention, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, that means can I write 2L, right। अभी स्ट्रेच होगा यानी खींचेंगे तो वायर का लेंथ बढ़ गया, अगर वायर का लेंथ बढ़ता है तो न्यू एरिया आपके एरिया में बदलेगा ना,
एरिया, सोच के देखो एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, सोच के देखो एरिया बढ़ेगा घटेगा, एरिया घटेगा, यानी ए डैश क्या रहा है राइट, ए बाय 2, राइट क्लास, बिल्कुल रिवर्स इक्वेशन है. सो व्हाट विल बिकम्स द न्यू रेजिस्टेंस R dash is equals to, can I write rho L dash by A dash? Now put up the value of L dash and A dash in terms of the L and A, right? So rho 2L by A by 2. 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बना, 4 rho L by A. Rho L by A यानी कौन है, R, जो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर चुके हैं, राइट? क्या लिखेंगे, 4 into 20. So answer is 80 ohm. This is the answer. Right class? So you have to understand the meaning which has been given or mentioned in the question. Right class? Next question, a copper wire has a diameter of 0.5 mm. Mm means millimeter. And the resistivity of wire is 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, right? Question पूछा है, what will be the length of wire to make resistance of 10 ohm, right? पहले सवाल में आपको लेंथ पूछा है. नेक्स्ट सवाल में पूछा है, how much does the resistance change if the diameter doubled? Diameter doubled, right class? Now we'll see one by one. First we have to write the again given data, that is diameter 0.5 mm. We have to write or convert in SI unit, right? So we can write 0.5 into 10 raised to power minus 3 meter. 1 mm is equals to कितना मीटर, 10 raised to power minus 3 मीटर, राइट क्लास? इसी को सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 into 10 raised to power minus 4. ये पॉइंट उधर हटा देंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, यानी माइनस से घट जाएगा. सो 5 into 10 raised to power minus 4 हो रहा है, ओके? सो मीटर, राइट क्लास? सो दिस इज डायमीटर. नाउ रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर, ये कन्वर्टेड है ऑलरेडी. और पहले सवाल में आपको गिवन है, R गिवन है 10 ओम, जो आपको लेंथ निकालना है, राइट क्लास? सो फॉर्मूला बेस्ड पूरा कैलकुलेशन है. R इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला है रो L बाय A. तो L इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, R A बाय रो, R A बाय रो, राइट क्लास? सो R कितना, 10. A कितना है, A में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपको एरिया यहाँ पे गिवन नहीं है डायरेक्टली, आपको डायमीटर गिवन है, राइट? सो डायमीटर में आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो चलिए पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, राइट? सो एरिया कैसे निकालेंगे अभी, जब एरिया ऑफ द वायर, अब देखो एक मान लो ये वायर है, ये वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे लिखते हैं वो, कोई भी वायर का एक फॉर्म सर्कुलर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मैं स्मॉल आर से मेंशन करूंगा, पाई आर स्क्वायर, राइट क्लास? सो अगर पाई आर स्क्वायर है, आर और डायमीटर में क्या रिलेशन है, कैन आई राइट आर इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2 d by 2, r is equals to d by 2. So area becomes what? Area becomes pi d square by 4. d by 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे r स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर है तो यहाँ पे r d by 2 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट किया मैंने d स्क्वायर बाय 4. कंफ्यूज ना होना, r इज इक्वल्स टू क्या है, d by 2. r की वैल्यू क्या है, d by 2, यहाँ पुट करो तो क्या बन जाएगा, d स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, राइट? तो व्हाट विल गेट, पाई डी स्क्वायर, डी कितना है भाई साहब, 5 इंटू
10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 4। राइट क्लास, इसको हम स्क्वायर करते हो, फाइंड आउट करते हो, कितना बनेगा पाई 25 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 8 बाय 4। दैट शुड बी द एरिया, नो नीड टू कैलकुलेट, राइट। ये एज इट इज वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट बी रिमेंबर, राइट, आफ्टर पुटिंग सच मेथड यू हैव टू सॉल्व वेरी केयरफुली। राइट क्लास, नाउ वी विल सॉल्व। Here I am mentioning, okay, so what area is already we have calculated this one, right? So directly we can write length is equals to r kitna 10 ohm, area we got pi into 25 into 10 raised to power minus 8 by 4 whole divided by is what? Resistivity. Resistivity is what? 1.6 into 10 raised to power minus 8. Right? Write this all in a simple manner, right, to get answer. So length is equals to 10 into 25 into 10 raised to power minus 8 into pi whole divided by 4 into 1.6 into 10 raised to power minus 8। क्या लिख सकते हैं इस तरह से, ये 4 नीचे में, राइट। सो यहाँ पे माइनस 8 विल गेट कैंसिल, राइट। एक पॉइंट चाहे तो आप शिफ्ट कर लीजिए ताकि आसान बन जाए, राइट। सो L इज इक्वल्स टू कितना होगा 10 इंटू 250 बाय 4 इंटू 16 इंटू पाई, राइट क्लास, राइट। सो अब जब इसको आप सॉल्व करते हो, आप सॉल्व करके देखना, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, टाइम पास हो जाता है थोड़ा। लगभग आपका 122.7 मीटर लेंथ आना चाहिए। 122.7 मीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर टू गेट 10 ओम रजिस्टर्स, राइट। कैलकुलेट करके देखिएगा, कहीं गलती हो तो आप पाई का वैल्यू भी पुट कीजिएगा 3.14 या 22/7, right class। so this should be the length of the wire। so this is the solution of first part, पहले पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड पार्ट में आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट, राइट। क्या बोला है, how much does the resistance change if the diameter is doubled, right। resistance already given कितना है 10 ohm, right class। अब ये अगर मैंने डायमीटर को डबल कर दिया, राइट, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस आएगा ये पूछा है, राइट क्लास। चलिए इसके ऊपर हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप रिलेशन देखते हो, बेसिकली आर इक्वल्स टू क्या लिखे थे हमने, रो एल बाय, लेकिन ए डायरेक्टली गिवन नहीं था, आपको गिवन था डायमीटर। तो डायमीटर के फॉर्मूले में हमने क्या पुट किया था, रो एल बाय पाई डी स्क्वायर बाय 2, सॉरी पाई डी स्क्वायर बाय 4, राइट क्लास। इस तरह से एक फॉर्मूले में हमने पुट किया था, राइट। और इसको हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखते तो बनेगा 4 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, राइट क्लास। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर, राइट। ये याद रखने की जरूरत नहीं, याद सिर्फ इतना रखो पाई डी स्क्वायर बाय 4 या पाई आर स्क्वायर, राइट, तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी पूछा गया क्या, डबल क्या कर दिया, राइट, डायमीटर। अभी इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये आर का वैल्यू था 10 ओम जो गिवन था। अभी नया डायमीटर बनाया, डबल बना दिया, यानी कि आपका नया डायमीटर है डी डैश इज इक्वल्स टू क्या लिखता हूं मैं 2d, डी डैश क्या लिखना चाहिए 2d। नाउ वी कैन पुट r डैश इज इक्वल्स टू 4 रो l बाय, राइट। अब यहाँ पे डायमीटर में ही चेंजेस लाए होते हैं, लेंथ के रिलेटेड कुछ नहीं बोला, फोल्ड नहीं किया, ऐसा कुछ बोला है क्या, फोल्ड नहीं, डबल किया है, पता नहीं कि डबल उन्होंने कैसे किया है, लेकिन फोल्ड के बारे में नहीं सोचना, नहीं तो गलत हो जाएगा, लेंथ बदल जाएगा। ओके क्लास। सो रोयल बाय पाई डी डैश स्क्वायर,
d डैश स्क्वायर, देखिए d डैश का वैल्यू कितना है 2d, सो 4 रो l बाय पाई 2d का स्क्वायर, पाई 2d का स्क्वायर। ओके क्लास, सो अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो r डैश मिलेगा 4 रो l बाय, किस तरह से लिख सकता हूं मैं, देखो पाई 4d स्क्वायर, 4 4 विल गेट कैंसल, तो रिमेन क्या होगा रो l बाय पाई d स्क्वायर, राइट, रो l बाय पाई d स्क्वायर। सो दिस इज बिकम योर r डैश। अब यहां पे आप सही ढंग से देखते हो 4 रो l बाय पाई d स्क्वायर यानी क्या था 10 ओम, राइट क्लास, और यहां पे क्या है 4 सॉरी रो l बाय पाई d स्क्वायर, रो l बाय पाई d स्क्वायर, राइट। इसको एडजस्टमेंट मैं करता हूं, एडजस्टमेंट तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड बाय 4, 4 4 रो l बाय पाई d स्क्वायर। अगर देखते हो ये वैल्यू यानी क्या था 10 ओम, यानी क्या लिख सकता हूं 10 रिमेन क्या है बाय 4, 10 by 4 is your answer, that is 2.5 ohm is the solution, right class. So this is the solution of the second part, right. Go through the all questions, right, and try to solve by your own, right. Okay class, okay, take care and bye bye.